اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حیدرآباد کے ترقی کے حالات بتاؤں گا۔ چند دن پہلے کہا، چار دن پہلے، کیونکہ میں اگست کی فرسٹ کے بعد امریکہ میں داخل ہو گیا، نیو یارک میں۔ تو مجھے سب سے پہلے یہ بتانا ہے کہ یہاں آکاش نام کا لڑکا آکاش دلال ہے اس کا نام۔ میرے بھائی کے دوست کا نام بھی جو ہے دلال تھا، وہ 1961 میں آیا تھا امریکہ میں اور مر گیا۔ تو یہ آکاش دلال ہے، یہ نئے جنریشن کا ہندو ہے، اور اس کو 35 سال جیل ہو گئی کیونکہ اس نے ٹیررسٹ جیسا اٹیک کیا سینیگارڈ پر، یہودیوں کے چند دوستوں کو لے کر اس نے نقصان پہنچانا چاہا اور 35 سال کے لیے جیل ہو گئی۔ آکاش دلال کا قصہ صرف آپ کو یہ انڈین پیپروں میں ملے گا۔ یہاں کے یہ دیسی پیپر کہلاتے ہیں، یہ ساؤتھ انڈین پیپر ہے، اور یہ جو ہے آپ کو نیوز انڈیا ٹائمز ہے۔ یہ دو میں بھی آپ ایک ٹیررسٹ کا قصہ سن رہے ہیں۔ اب مسلمان بار بار ٹیررسٹ بولے تو صرف اپنے آپ پہ لیبل لگا لیتا۔ آپ کو یہ معلوم ہے ہندو ٹیررسٹ ہے، اس نے جو ہے سینیگارڈ کو نقصان پہنچانا چاہا، یہودیوں کے جو ہے عبادت گاہ کو اور ان کے جو ہے عبادت کرنے کے طریقے کو نفرت کی وجہ سے نقصان دینا چاہا، اور معلوم ہوا کہ ہندو بھی ٹیررسٹ ہے۔ دیکھو 35 سال جیل میں چلا گیا، اب اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ ایک قصہ یہ ہے۔ دوسرا قصہ، ابھی انڈیا میں جب تھا تو انڈیا میں ذاکر نائک کو آنا ممنوع قرار کر دیا۔ ذاکر نائک اب انڈیا آئیں گے تو ان کو یا تو عدالت یا تو پھر جیل یا تو پھر جو ہے کورٹ جانا پڑے گا۔ اس طرح سے ان کا انڈیا میں قدم رکھنا ان کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہو گیا، ان کی زندگی کے لیے بہت بڑا ایک جو ہے زخم ہے، کیونکہ ذاکر نائک باہر نکل کر ممالک میں، یہاں امریکہ میں پیس ٹی وی اردو چل رہا، انگلش بھی چل رہا، اس طرح سے پوری دنیا کے اندر سوائے انڈیا کو چھوڑ کے ان کے کام کا چرچا ہے۔ وہ دعوت کا کام ابھی بھی کر رہے۔ اور آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ ذاکر نائک نے انڈیا کو پاورفل ہونے والا ملک بتایا ان کے بہت سارے لیکچرز میں، سپر پاور جیسا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، میں انڈیا کو آنکھوں سے دیکھ کر آیا، آنکھوں دیکھا حال ہے میرا، اور یہ سب سے بڑا اللہ کا عذاب حیدرآباد دکن پر ہو رہا ہے، جبکہ حیدرآباد ہی واحد شہر ہے انڈیا میں جو یہاں پر مڈل ایسٹ، امریکہ اور کینیڈا یا یورپ سے پیسہ لے کے حیدرآباد کو نیا بنانا چاہ رہے، ترقی یافتہ کرنا چاہ رہے۔ اس کی تعمیر میں جو ہے لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ لگ جا رہا، لیکن آپ کو اس کا ایک اندازہ میں بتانے کے لیے، ذاکر نائک کے سلسلے سے سپر پاور یہ ملک ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا دعویٰ میرے ویڈیو میں میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ایک طرف آپ حیدرآباد کی ترقی ہائی ٹیک سٹی سے دیکھیں گے، ہائی ٹیک سٹی میں ایک بھی مسجد نہیں ہے۔ میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 400 سال پہلے ایک بار ایسا زلزلہ آیا جس میں 8 لاکھ سے زیادہ انسان مر گئے۔ 400 سال پہلے کی گنتی ہے، یعنی ان گنت انسانوں کو زلزلے میں، یہ عذاب جیسے ججمنٹ ڈے ہے، یہ عذاب جیسے حشر کا میدان ہے، یہ عذاب قیامت کا برپا ہونا ہے، ایسا ہی 400 سال پہلے اللہ نے زلزلے سے انسانوں کو مار دیا، لاکھوں، 8 لاکھ سے زیادہ۔ اب یہ جو زلزلہ جیسا نما
हैदराबाद को जो तरक्की समझ रहा वहाँ का मुसलमान और हिंदू, ये गलत मैं इस वास्ते कर रहा हूँ। एक मकान में आप जाओ, आपको मालूम होगा सामान रखा हुआ है, मूविंग ट्रक वाला जो है एक मकान से दूसरे मकान में मुंतकिल होने वालों के सामान ला के पटक दिया, और उसको जो है हर जगह तरतीब से ड्रेसिंग टेबल को ड्रेसिंग टेबल रखना है, बेड को बेड की जगह रखना है, सोफ़े को सोफ़े की जगह रखना है, फ़ैन हो या आपके पास एसी हो, इस तरह से जो भी आपके लग्जरियस लाइफ की जो सामान होता है उसको आप अपनी जगह रखना है। उसी तरह एक मकान वाले को तकलीफ़ होगी। सेम इंडिया के हैदराबाद दक्कन की है, वहाँ आपको फ्लाई ओवर जो है मेट्रो लाइन पड़ रही, फ्लाई ओवर ब्रिजेस है, और दूसरी तरफ आपको कंस्ट्रक्शन के कई घरों को डिसमेंटल कर दिया गया, वहाँ नए बन रहे। यहाँ तक कि बाज़ लोग अगर से 2 मंजिला थी तो उसको 6 मंजिला बनाना चाह रहे, क्योंकि उनको मालूम हो गया कि जो बिल्डर जो है आधे पैसे उनको देगा मालिक मकान को जिसकी ज़मीन होगी, या आधे 6 अगर से कमरों वाला 6 अपार्टमेंट्स का बन रहा 3 उनको देगा, 3 खुद रख लेगा। तो इस तरह के जो बिल्डर्स भी काम कर रहे हैं उसमें भी धोखा चल रहा, वो लोग आधा काम करके छोड़ दे रहे। कई जगह ऐसा जो है बेचारे जिन्होंने अपनी हवस में उनको बिल्डर्स को दे दिया, वो भी नुकसान का सामना भुगत रहे। तरक्की नाम की जो कह रहे हैं हैदराबाद को हाईटेक सिटी के एतबार से, हाईटेक सिटी वहाँ पहाड़ है और जब ज़लज़ला आएगा तो पूरी इमारतें गिर जाएगी। ये दूरअंदेश हिंदू नहीं सोच सकता, क्योंकि वो कुरान नहीं पढ़ता, और कुरान ही वाहिद है जो बता रहा हर 100 साल में ज़लज़लों से लाखों इंसान और एक एक शहर उजड़ जाता है, एक एक मुल्क उजड़ जाता है, एक एक जो है बस्ती उजड़ जाती है। ये सिर्फ कुरान बता रहा सूरह ज़िलज़ाला से। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ जो हिंदू नहीं समझ सका। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ कि अल्लाह ने एक ऐसा अज़ाब दिया था इंसानों को जो 7 दिन तक आंधी चलती रही, ये इंसान नहीं समझ सकता। अब दूसरी बात ये हैदराबाद की नुकसान ये हो रही कि वहाँ जो ड्रिंक्स बिक रहे हैं जूस जैसे, चाहे तो कोई भी शू कर सकता है, वो गंदे हैं, इतने गंदे हैं, खाली पानी और शक्कर मिला हुआ है। और यहाँ का स्प्राइट, यहाँ का कोको कोला ज़मीन और आसमान का फ़र्क वाला जो है मज़े में, और जो है एक हेल्थी ड्रिंक की तरह होगा यहाँ का, और वहाँ का जो है आपको पॉइज़न जैसा, आपको जो है एक मानो में आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ ले जाने वाला और सेहत छीन लेने वाला ड्रिंक्स है वो, हर जगह बिक रहा। और एक ख़ास बात यह है, लूट मची हुई है। ऑटो वाला आपको बेईमानी से मीटर नहीं चलाएगा, और मीटर चलाएगा भी तो ट्रैफिक में रुक जाएगी करके एक अंदाज़े से बोल रहा। अगर से आप जो है एक ऑटो हायर कर रहे, मैं निकला था हैदरबाग से इमलीबन जो बस स्टैंड है वहाँ जाने के लिए 200 रुपये पूछा, या 200 कोई पूछता, 180 पूछता, 150 पूछता, फिर लूटने का जो है एक अंदाज़ है। दूसरा ये कि जो आप ज़मीन ख़रीदे वो ज़मीन कोई ना कोई किसी हिसाब से बेच ले रहा, और वहाँ पर जो है आधार कार्ड की बात हो रही और पैन कार्ड की बात हो रही, हर बैंक में हर जगह रजिस्ट्रेशन में भी यही बात हो रही। उसके बावजूद लूटने वाला जो है प्रॉपर्टी को लूट ले रहा, और कीमतें इतनी गंदी होती है। अगर से कोई आँख मायना करना चाह रहा, एक मुसलमान है ओरिएंट जो रेती बोली के पेट्रोल पंप के पास मेहदीपट्टनम में, वो 200 लेगा, और वही जो है विद्यानगर कॉलोनी की तरफ का एक हिंदू जो मायना करेगा आँख का, वो 300 लेगा। कोई कीमतें नहीं होंगी हॉस्पिटलों की, लूट मची हुई है हर हॉस्पिटल में। खाली एक मामूली मेरे बच्चे का ये हाथ का मायना कराना था, $2000 खर्च हो गए गोलियों के, और जो मायने के 400। इस तरह से इंसान को खाली खून चूस रहे और मालूम ही नहीं हो रहा। इंसान जीना चाह रहा, लेकिन उसके पीछे जो है इंसानियत ख़त्म कर लिया, ये नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, अब मैं एक और ख़ास बात बताऊं। जाकिर नाइक की मैंने जो बताया कि जी सुपर पावर होगा,
आप जाके देख सकते हैं, हैदराबाद में ही सिर्फ 300 मसाजिद अगर हैं तो 3000 फ़कीर आपको मसाजिद के सामने मिलेंगे जुमा के वक्त। और उसमें बुरखे पहनेंगे, हिंदू भी हो सकता है वो बुरखे पहन के आने वाला, औरत हो या मर्द हो, क्योंकि अपने आप को छुपाओ तो भीख मांग सकता है, ये भी एक नया बहाना है। और दूसरा ये कि मिडल ईस्ट से जितने भी मुसलमान आते हैं मसाजिद के पास लाखों रुपया दे रहे, उन लोगों को एक सिस्टम बनाना चाहिए। हैदराबाद में एक दुकानों का या कारोबार का या फिर जो है प्रॉपर्टी का या फिर जो है आपको एजुकेशन का एक सिस्टम बनाना चाहिए। आप कोई भी स्कूल में डाल दे बच्चों को, लाखों रुपए खप जा रहे हैं आपके, बच्चा पढ़ के निकल रहा, तुम समझ रहे हैं। और बेरोज़गारी का आलम यह है कि खाली अमेरिका के अंदर 21 लाख जो है स्टूडेंट आना चाह रहा इंडिया का। अब इस तरह से यूरोप सोच लो, इस तरह से रशिया सोच लो, इस तरह से जो है कनाडा सोच लो, कितने लाखों करोड़ों लड़के अगर पढ़ के निकले इंडिया में, तो फिर बाहर क्यों जाना चाह रहे। ये एक धोखा है इंसान का कि मिशनरी स्कूल या ये जो इंग्लिश स्कूल्स जो आजकल चल रहे हैं वो कैसा पैसा लूट रहे हैं, ये आम आदमी नहीं समझ सकता। मुसलमान सबसे ज़्यादा आज खैरात, ज़कात, फितरा, हदिया मोहताजों को देने में नंबर 1 है हैदराबाद में, मगर कोई सिस्टम से नहीं। गरीब मर रहा वहाँ, और जो है सड़कों पे आपको मरी हुई बिल्लियाँ, मरे हुए चूहे, मरे हुए कुत्ते, इस तरह से सड़कों पे आपके सेहत को ख़राब कर देंगे। अगर वरंगल जाएंगे तो वहाँ की मोहरियाँ, जो गंदा पानी बहता है, जो घरों के जो है बहुत सारे बर्तनें धोने के बाद या फिर उनके अंदर का जो घर का मैला होता है, गार्बेज होता है, वो बाहर फेंकते हैं और उस सीढ़ी वो मोहरियों में जाता है और वो उससे सेहत आपकी ख़राब हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इंसान की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हिंदू अल्लाह को नहीं मानता और अल्लाह अपना जो है रुख मोड़ लिया। इंसान इंडिया के देख रहा नहीं, हिंदू मर रहा। इंसान देख रहा नहीं, हिंदू तरक्की नहीं कर रहा। इंसान देख रहा नहीं, वहाँ का मुसलमान भी धोखेबाज है। आयत करीमा हम कराए हमारे साले के यहाँ, वो तो साला साहब अपनी बच्ची का ख़त्म कुरान कराने के लिए आयत करीमा कराए। सब बच्चों के पास जो है वो आईपॉड या सेलफ़ोन है और वो लोग बात कर रहे हैं, और कोई भी जो है आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन दिल से पढ़ते हुए नहीं देखा। और एक बात ये, ख़त्म अगर कुरान हो तो सजदा भी नहीं करते वो लोग, 14 सजदा है कुरान में। और फिर उसके बाद एक उनका इमाम जैसा, लीडर जैसा, जो उनके मदरसे को चलाने वाला आके दुआ पढ़ के चले आता। फिर अगर से आप बाहर से आए बोले तो लूटने के वास्ते हमारे चंदे की मदद करो बोलता। और ऑटो में अगर जा रहे हैं, आप कोई मुसलमान है समझ के पूछे तो वो बोलेगा मैं सैयद हूँ, ताकि तुम उसको भीख दो। नौज़बिल्ला, मैं इतनी बुराइयाँ बता सकता हूँ कि इंसान हैदराबाद हो या इंडिया में, एक शहर देख के मैं अंदाज़ा कर रहा हूँ जो सबसे बड़ा तरक्की करने वाला हैदराबाद है। पूरे इंडिया में, पूरी दुनिया में बात मशहूर है हाईटेक की वजह से या साइबर सिटी की वजह से। लेकिन वहाँ जो जहन्नुम है मैं और भी बता सकता हूँ, लेकिन इसमें मैं 2 बातें बताया। एक तो जाकिर नायक सुपर पावर बोले वो नहीं है, और जाकिर नायक जो है हिंदुओं की, वो जब भी डिबेट्स में तारीफ़ करते तो उन्होंने जो है हिंदुओं के बुक्स में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं बोल के बताए तो उनको बर्दाश्त नहीं कर सके वो, इस वास्ते वो शैतान है हिंदू। और दूसरी बात, वो इंडिया की बार बार तारीफ़ करे भी तो जो है उनको टेररिस्ट जैसे उसमें जो है मलूस कर दिया गया। ये अल्लाह काम लेने का तरीक़ा ज़ाकिर नायक खुद सोचे। अगर अल्लाह ताला इनसे काम लेना चाह रहा तो जो है इंडिया के बारे में ये सोचना ही बंद कर दे, और इंडिया के मुसलमान ईमान नहीं ला सकते। मैंने देखा वहाँ के मुसल्ली भी जो है अपनी नमाज़ पढ़ के चले आते हैं, अगर कुछ बोले तो बोलेंगे नौजवान बच्चों को ये हिंदू पुलिस वाले अरेस्ट कर ले रहे हैं। इस वास्ते हमको दावत की फ़िक्र करना नहीं है, हमारी अपनी ज़िंदगी जीना है, और हमारी ज़िंदगी जीने में वो
شہر کو صاف بھی نہیں کر کے گندی زندگی جینا چاہ رہے ہیں، جو ٹریفک سے بھرا ہوا ہے، جو پولوشن سے بھرا ہوا ہے، جو ابر آلود ہو گیا، زنگ آلود ہو گیا، اور ان کے ایمان کا جو میں حرارت بتا رہا ہوں وہ زیرو ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.